Hello, this is the lecture number 5 for the chapter Trigonometry for the class 10th, and in the previous lectures we have discussed what is a trigonometry is and how many trigonometric ratios are there, that is the sine, cos, tan, cosec, secant, cot, and by using those trigonometric identities, if any one of the trigonometric identities is given, then we have used the Pythagoras theorem to find the remaining trigonometric ratios, and we have done the trigonometric identities for complementary angles. Now today we will discuss the trigonometric identities. Trigonometric identities. Now trigonometric identities is also known as trigonometric formulas. The first is sine square A plus cos square A is equal to 1. We can easily prove it. Now suppose this is a right angle triangle and this is the angle A, then sine A is perpendicular upon hypotenuse. So what is the perpendicular for angle A? It is BC, and perpendicular upon hypotenuse it is AC, इसका square हो गया. Cos is base upon hypotenuse, so for this angle A the base is AB, so AB square upon hypotenuse is AC. Sine is perpendicular upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, so it is AC square BC square plus AB square. So BC square plus AB square is equal to AC square by Pythagoras theorem, so it is coming out to be equal to 1. So sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जरूरी नहीं कि हम एंगल लिखें. sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लाइक दिस. ओके, सो बाय दिस ये दिस इज द फर्स्ट मेन फॉर्मूला. फ्रॉम दिस यू कैन ईजिली फाइंड sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यू कैन राइट sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये इस फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से लिखने का तरीका है. Now by using this formula, if you know the value of cos theta, you can find easily the value of sin theta, where you don't have to use the Pythagoras theorem. Similarly, from this you can easily find the cos square theta, which will equal to 1 minus sin square theta, or cos theta is equal to under root 1 minus sin square theta. इस तरह से. It means if you know the value of sin theta, you can easily find the value of cos theta. अगर आपको sin theta की वैल्यू पता है, जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी have done, where we have used the Pythagoras theorem, you can easily use this formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1 to get the value of sin theta, is the value of cos theta is given, and value of cos theta is the value of sin theta is given. The next is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. By using the same right angle triangle we have done in the proof of sin square theta plus cos square theta, we can easily put it here. Sec is hypotenuse upon base, tan is perpendicular upon base. Using the Pythagoras theorem we can easily solve it. So this is a second main formula from where you can easily get the value of sec square theta when the tan theta is given, that is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and tan square theta is equal to sec square theta minus 1. So from this we can write it this, or tan theta we can write under root sec square minus 1. The third is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. ये आपके पास है, ये फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से you have to learn. तो cosec square theta will be equal to 1 plus cot square theta, or you can write cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. So these are three main formulas which can be written like this also. These are three main formulas. After that, because we know that sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, and cosec theta is hypotenuse upon perpendicular, so it means we can say that cosec theta will be the reciprocal of the sin theta, or sin theta is the reciprocal of cosec theta. ये आप लिख सकते हैं, और you can write sin theta into cosec theta is equal to 1. sin theta into cosec theta is equal to 1. Similarly, ऐसे ही sec theta किसका रेसिप्रोकल होता है? cos. स्टार्टिंग हमने करा था.
और cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? sec थीटा। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हम लिख सकते हैं लाइक दिस। What we have done? We have done that cot theta is equal to sin tan theta is equal to perpendicular upon base. तो cot theta base upon perpendicular होता है, इसका मतलब cot theta is the reciprocal of tan और tan theta is the reciprocal of cot। और उसको हम क्या कर सकते हैं? tan theta into cot theta किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल, like this। So this is the some formulas which we have to also learn। ये हमने फॉर्मूले लर्न रखने हैं। सो दीज आर दी सम, दिस इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। सपोज हमारे पास साइन थीटा क्या है? 1/2 है। वो कह रहा है आपको इससे कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पता करिए। तो कॉस थीटा कितना होता है? अभी हमने लर्न करा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/4, 3/4 का √, तो √3/2 कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? कॉस थीटा की। अब टेन थीटा आपको निकालना है। टेन थीटा क्या होता है? आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लर्न कर लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? √3/2, तो ये 1/√3 आ गया। दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आपको अगर गिवन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यू कैन ईजिली यूजिंग दिस आइडेंटिटी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द some basics for the trigonometric identities. We are starting with the exercise 8.4 and you have to express sine, cos, sec, sine, sec and tan in terms of cot A। cot की टर्म्स में आपको ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है। कॉट की टर्म्स में आपको सारी वैल्यू लिखनी है। तो आप साइन ए को क्या लिख सकते हैं? आप साइन ए को 1/cosec लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है। cosec हमने अभी फॉर्मूला करा था, √1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट के टर्म्स में किसकी वैल्यू आ गई? साइन ए की वैल्यू आ गई। सेक ए में आ जाओ। सेक ए हमें किसके टर्म्स में लाना है? कॉट के टर्म्स में लाना है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं? √sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर ए होता है और 10 रेसिप्रोकल होता है कॉट का, इस तरह से। तो सेक की वैल्यू भी कॉट के टर्म्स में आ गई और 10 आपको पता ही है किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आगे कि हमने साइन, सेक और 10 को कॉट की टर्म्स में लिख दिया सब। इन ऑल वी हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ कॉट। कॉट की टर्म्स में हमने सारी वैल्यूज लिखी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ sec A, इन टर्म्स ऑफ sec A, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जैसे साइन है, साइन को सेक में लाना है तो हम क्या होता है? साइन 1 √1 - cos स्क्वायर ए होता है और cos जो आपका पता ही है सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक के टर्म्स में आंसर आ गया। किसके टर्म्स में आ गया? सेक की टर्म्स में ये आंसर आ गया। उसको एलसीएम लेकर के माइनस कर सकते हैं। कॉज आपका पता ही है सेक का रेसिप्रोकल होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक। अब 10 सेक के टर्म्स में लाना है। 10 क्या होता है? हमने लर्न करा ही है, सेक स्क्वायर ए, आपका सेक स्क्वायर ए -1 होता है। तो 10 ए कितना हो गया? 10 ए हो गया √sec स्क्वायर ए -1। 10 के टर्म्स, सब 10 के टर्म्स में आ गया। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन की वैल्यू हमने सेक के टर्म्स में निकाली है। इसका आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके माइनस करके इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेक का सेक हो ही गया। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट 10 का, और 10 की वैल्यू हमने सेक के टर्म्स में निकाली है, ये रही। तो हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए -1। So these are the all remaining 5 trigonometric ratios in terms of
सेक के टर्म्स में हमने सारी वैल्यूज निकाल ली. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले तो फॉर्मूलेज वी हैव डन इन द लास्ट एक्सरसाइज, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी हैव डन टुडे. So you have to find the values of this. Now if you see it carefully, the sum of these two angles is equal to 90 and the sum of these two angles is equal to 90. तो आप इसको 90 माइनस थीटा करके कर सकते हैं. तो 63 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 27 और 27 को एज इट इज़ लिखिए. 17 प्लस 73 इट इज़ इक्वल टू 90. तो आप 17 को 90 माइनस 73 लिख सकते हैं. अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है. कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. अब ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये सेम होना चाहिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सेम होना चाहिए. किसके इक्वल होता है? 1. इसी लेक्चर में हमने करा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1. थीटा यहाँ पर 27 है, थीटा यहाँ पर 73 है. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वी हैव साइन 25 डिग्रीज, कॉस 65 डिग्रीज, कॉस 25 डिग्रीज, साइन 65 डिग्रीज. तो इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके वी आर गेटिंग 9. तो 25 की जगह आई एम राइटिंग 90 माइनस 65 कॉस 65, कॉस 25 की जगह 90 माइनस 65 साइन 65. तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 65 हो जाएगा ये. कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, थीटा इज 65. तो क्या आ गया देखो, साइन कॉस इंटू कॉस सेम एंगल है तो कॉस स्क्वायर 65, साइन इंटू साइन सेम एंगल है साइन स्क्वायर 65. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, 9 sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए. 9 आई हैव टेकन कॉमन और हमें पता है sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है? इट इज़ इक्वल टू 1. तो 9 के इक्वल आ गया. इट इज़ इक्वल टू 9. थर्ड पार्ट, अब इसमें देखो ध्यान से थोड़ा सा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ध्यान से यू हैव टू राइट इट एंड देन यू हैव टू टेल दिस इज द थर्ड पार्ट. दिस इज द थर्ड पार्ट. इट इज़ 1 माइनस साइन. तो ये किसके इक्वल है? इट इज़ गिवन एज 4 ऑप्शंस, सेके, साइन ए, कॉसेक एंड दिस. तो जब कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो सबको. तो मैंने सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, टेन साइन का रेसिप्रोकल साइन अपॉन कॉस होता है एंड 1 माइनस साइन ए. देखिएगा ध्यान से, इसको ऐड करिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए. ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई. क्या यूज़ करा हमने? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी. ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल. तो क्या आ गया सॉल्व करने पर? इट इज़ इक्वल टू कॉस ए. कैंसिल होकर के कॉस ए के इक्वल. तो इसका ये ऑप्शन आ रहा है हमारा, डी ऑप्शन है इसका. द ऑप्शन इज डी. फोर्थ पार्ट of this, the fourth part is ये है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. थोड़ा सा इजी है. 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है. फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं, अदरवाइज इट विल बिकम डिफ़िकल्ट. अब आप इसका रेसिप्रोकल करें, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा
और इसको डिनोमिनेटर व्हेन यू टेक इट विल बी कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है और 1 अपॉन साइन ए कॉस ए होता है। तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, साइन अपॉन कॉस 10 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दीजिए। सो दिस इज दी फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो समवॉट लेंथी, तो बी वेरी केयरफुल। इट इज गिवन दैट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये आपको किसके इक्वल है? इट इज़ गिवन एज 0 1 2 -1 दे रखा है। तो व्हाट आई हैव डन, इसको मैंने 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा लिख लिया, और ये जो यहाँ पर cot है इसको 1 अपॉन 10 लिख लो, राइट एट 1 अपॉन 10 एंड cosec। ठीक है, तो इट इज़ 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसको एलसीएम लेके ऐड कर लो, tan थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा अपॉन tan थीटा। ये राइट हैंड साइड मैंने एलसीएम लेकर के ऐड कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया। इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेके ऐड करेंगे, ये आएगा cosec थीटा इंटू tan थीटा, एलसीएम लेके जोड़ेंगे ना। जब इसको आप 1 अपॉन साइन और साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, 1 अपॉन साइन और साइन अपॉन कॉस, तो ये सेक आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा आ जाएगा, ये नीचे tan थीटा बचाइए। नाउ बी वेरी केयरफुल, इसको बहुत ध्यान से देखिए। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास ये tan थीटा आई रखा है, डिनोमिनेटर में tan थीटा ये है। अब इसका होल स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। tan थीटा हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 tan थीटा अपॉन tan थीटा बच रहा है, जो कि किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यू हैव टू लर्न टू डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बहुत अच्छी तरह से फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए जो आपके कमिंग क्वेश्चंस हैं। It is based on the trigonometric identities. So be very careful, learn the identities very well, then you will able to do the coming questions. Okay, we'll continue the next lecture. Thank you.